Dear students, in previous lecture, we learned the method of finding inverse of any non-singular square matrix. Now in this lecture, we will learn the application of matrices for finding solution of system of linear equations. Consider a system of three linear equations in three variables as a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. We can convert this system of linear equations in three variables in a matrix form. Ax is equal to b. That means a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 into matrix X means having elements x, y, z. Matrix B is a column matrix having elements d1, d2, d3. It is matrix form of given system of linear equations. Here A, matrix A, which is matrix square matrix of order 3 by 3. This matrix A is called coefficient matrix because A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 are coefficients of variables x, y, z. And matrix X, which is a column matrix of order 3 by 1, having 3 rows and 1 column, it is a variable matrix. And here x, y, z are variables of equations of this system. And matrix B is also a column matrix of order 3 by 1. That means matrix B is having 3 rows and only 1 column. And here D1, D2, D3 are constants of equations of this system. Therefore, matrix B is called constant matrix. A is coefficient matrix, X is variable matrix, B is constant matrix. Now, there are two matrix method of finding solution of given system of equations. That means for finding values of variable x, y, z which are satisfying the given equation or given system, there are two methods for finding these variables, and both are matrix method. Number one is inversion method of finding variables. That means the method of inversion. And the second method is method of reduction. In this method, the system of given linear equation can be converted into matrix form as Ax is equal to B. Here A is a square matrix of order 3 by 3, which is a coefficient matrix. If A is a non-singular square matrix, that means the determinant of A is not non-zero, not equal to 0, then
ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर आपका ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट्स का, अगर ये नॉन सिंगुलर रहा, दैट मीन्स इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो रही, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और उसी वक्त इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, then we can find its inverse by any method. That means by either elementary row or column transformation method or by adjoint method. अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट है, दैट मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, तब इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। चाहे इसका इनवर्स हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकालें या इसका इनवर्स एडजॉइंट मेथड से हम फाइंड करें, हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं अगर ये नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब। और उस वक्त हम इन्वर्जन मेथड से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसके वेरिएबल्स की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे एक्स वाई जेड की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं जो वैल्यूज तीनों इक्वेशन को एट अ टाइम सेटिस्फाई करेगी। अब इस मेथड के लिए हमको ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा, चाहे एडजॉइंट मेथड से निकाले, चाहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकाले। और ए इनवर्स जब फाइंड कर लेंगे हम, तब ए इनवर्स को 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को ए इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी ए इनवर्स से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, एलएचएस में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, आरएचएस में भी ए इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने पे here we get A inverse into A and we know that A inverse into A is I. That means we get I into X is equal to A inverse into B. Also we know that if we multiply any matrix by identity matrix, then we get matrix itself. हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा। अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम वही मैट्रिक्स हासिल करेंगे, हमको एक्स ही मिलेगा। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हम एक्स ही पाएंगे। हियर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। अब चूंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स था 3x3 का, उसका इनवर्स भी 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और बी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है 3x1 का, दोनों का मल्टीप्लाई आराम से होगा। और जो इनके मल्टीप्लाई से न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 3x1 रहेगा, वो भी कॉलम मैट्रिक्स होगा। एक्स हमारा कॉलम मैट्रिक्स है 3x1 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा 3x1 ऑर्डर का, और दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। बाय इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस हमको एक्स वाई जेड वेरिएबल्स की वैल्यूज मिल जाएगी, हमको इनकी वैल्यूज मिल जाएगी। ये मेथड हमारा कहलाता है इन्वर्जन मेथड of finding solution of given system of equation। सेकंड मेथड है हमारा रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म जो हासिल हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स फॉर्म इस गिवन सिस्टम का, इसमें हम ए को धीरे धीरे रो ट्रांसफॉर्मेशन करके आपका अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, इसे रो ट्रांसफॉर्मेशन से। सीरीज ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन से दोनों तरफ वही रो ट्रांसफॉर्मेशन जो है अप्लाई करेंगे साइमल्टेनियसली, और ए को हम डायगोनल मैट्रिक्स में या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस कर देंगे। ऐसा करने पे हमको जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स और ये डायगोनल मैट्रिक्स का या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो भी बनाएंगे हम उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा। वो मैट्रिक्स इस बी को भी ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन एलएचएस में कर रहे हैं वही ट्रांसफॉर्मेशन आप आरएचएस में भी करेंगे, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन से एक न्यू मैट्रिक्स में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस
दोनों तरफ कॉलम मैट्रिसेस आएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो चाहे अपर ट्रायंगुलर हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, चाहे आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो, और एक आपका कॉलम मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स होगा। वो कॉलम मैट्रिक्स इस कॉलम मैट्रिक्स के इक्वल है, और बाय इक्वलिटी हम यहां से दोनों मैट्रिसेस की इक्वलिटी से हम वापस से वी कैन गेट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगी, और वो ऐसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेगी, वापस से हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम हासिल कर सकते हैं, और मगर वो ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा विच कैन बी इजीली सॉल्व्ड बाय एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम आसानी से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकेंगे। और हम इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। वो वेरिएबल्स की वैल्यूज इस पूरे सिस्टम का कॉमन सोल्यूशन होगी, और चूंकि हम ए को अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करके हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा हासिल कर रहे हैं जो इजीली सॉल्वेबल रहेगा, तो इसीलिए इस मेथड को रिडक्शन मेथड बोलते हैं। यहां हमारा ए जो है पीरी फैक्टर मैट्रिक्स है, देयरफॉर यहां सिर्फ हमें ए को हम अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ए पीरी फैक्टर मैट्रिक्स है। इन दोनों के मल्टीप्लाई में पहला मैट्रिक्स है, पीरी मैट्रिक्स है, इसलिए हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यहां करना पड़ेगा, हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये दोनों मेथड से हम किसी भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों मेथड मैट्रिक्स मेथड है, यानी हम मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करके गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में है। हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की।